बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्वेश्चन जो हैं, जैसे एक पार्टिसिपेंट है हिबा फातिमा, उन्होंने लिखा है कि शी डज नॉट नो हिंदी, सो मे बी आई कैन जस्ट रिस्पोंड टू इन इंग्लिश। शी हैज आस्क्ड, हेलो सर, आई वांट टू जॉइन आईएएफ, हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प me in joining IAF? Okay, so actually, Hiba, what the IAF is basically Indian Air Force, and people can apply there through a competitive exam. So I think either through the NDA, IMA, or the special technician exam, which IAF conducts. That's a separate exam. You have to go to the IAF website and find out about the qualification and about the exam, how they recruit in IAF. But for electronics, yes, though not our courses. If you do our course, actually they are more meant to be absorbed in the industry, the more industrial line, or you can do self-employment. You can undertake self-employment. I mean, not. I mean, you can start your own small little business. It's for micro enterprise as this, or micro entrepreneurship, as they say. For joining the IAF and specifically electronics, yes, there are technical officers positions, and there are also technicians which are hired, but they are hired through a process and through their own internal process of the armed forces, which are specified on their website. So this, I think, answers your question. I think the question was like, what kind of skills do you think will help her in joining the IF? Of course, the entrance process is completely separate. Maybe they want to know if how can they prepare for it from now. And for IF, I think the three most important things which they, apart from their physical fitness, which is very, very essential to join any armed forces, and especially in IAF, they're more conscious about it. They, as far as I recall, that they have a certain standard about the eyesight, about the height, about the like not being flat-footed, and apart from that, the three skills are basically, I think, logical reasoning and basic knowledge of science up to class 10th level, which is the exam, and the general awareness. These three constitute the exam, because IAF is you have to appear through a competitive exam, and the exam evaluation is not on any other skill, but the basic capability of a person to be logical reasoning, a little bit of mathematics, and general awareness. So it's a general competitive exam. सलीम साहब, I would like to add a point. I mean, ये इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे थे। अब देखिए, इसमें दो तरह की जॉब्स होती हैं। एक होती है एयरमैन की जॉब होती है, जो कि टेक्निकल भी होती है। दूसरा ऑफिसर्स ग्रेड की होती है। एयरमैन के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो अगेन 12th है। 12th में आपके जो PCM होने चाहिए, और नॉन PCM भी लेते हैं इसमें, जो नॉन टेक्निकल जॉब में जाते हैं। और अगर ऑफिसर्स के लिए जाना है तो ऑफिसर्स के लिए दो एग्जाम होते हैं इनके। एक 12th के बाद होता है जिसको हम लोग NDA बोलते हैं, और एक ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसको हम लोग CDS बोलते हैं। तो अगर एयरमैन के लिए किसी को जॉब में जाना है जो आई मीन ऑफिसर ग्रेड की जॉब नहीं होती, उसके लिए 10th पास होना चाहिए। और अगर आपको NDA क्लियर करना है तो NDA के लिए आपके पास 12th होना चाहिए। और अगर CDS के लिए आपको एग्जाम के लिए जाना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आर्मी में जाना है तो BA भी चलेगा, और अगर आपको इंडियन एयरफोर्स या नेवी में जॉब करनी है तो आपके पास PCM होना चाहिए, यानी कि BSc आपको होना चाहिए। Thank you so much, sir, for answering this. Let me quickly ask other questions also. So one thing people wanted to know is, जैसे किसी को पता है कि उसका इस इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, बट दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट कि हमें फ्रिज में जाना है, AC में जाना है, तो उनको वो गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है कि कहाँ पे जॉब सबसे ज्यादा ओपन है जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अभी क्या है कि ये बच्चे जो होते हैं, बिकॉज दे आर इनटू टेंडर एज, तो इनको पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है। तो जिस अगर ट्रेनिंग पार्टनर्स या किसी भी इंस्टीट्यूट में जब वो जाते हैं, कोई भी बच्चा जाता है, तो वहाँ पे एक काउंसलर होते हैं। वो काउंसलर क्या है कि उनको समझने की कोशिश करते हैं। या बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, सो वी हैव डिजाइन्ड अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। उनके लिए एक हमने टेस्ट डिजाइन किया है। उस टेस्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ IQ क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स। उससे हम लोग ये लगा लेते हैं, और बात करके हम उनके काउंसलिंग का पार्ट से बात करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है।
वो एक जो जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सपोज अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 10 कोर्सेज। अब बच्चे को क्या है कि आज को लग रहा है कि मैं कोई भी कोर्स कर लूं, बट कोई भी कोर्स नहीं, ये काउंसलिंग का पार्ट है। जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो जो काउंसलर होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनसे बात करके उनको गाइड करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जो बच्चा अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है तो सबसे पहले वो काउंसलिंग में जाता है, और काउंसलिंग में जाने के बाद फिर उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद फिर वो काउंसलर के साथ बैठते हैं और काउंसलर उनको गाइड करते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एज है, आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है, आपको इसके मतलब जो चीज आपके पास अवेलेबल है, इसके लिए आपको इस कोर्स में जाना चाहिए। तो बच्चों को अगर किसी भी एकेडमी में जाते हैं तो उनको इस तरह की हेल्प मिलती है। ओके सर, एंड ऑल्सो सब लोग को ये भी जानना था कि जैसे जो जॉब पोर्टल के बारे में अहमद सर ने रेफर किया, सो वंस दे आर डन विद द कोर्स, जब एक बार उनको सर्टिफिकेशन मिल गई है तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? लाइक इंस्टीट्यूट विल हेल्प देम इन गेटिंग द जॉब? Yes, I mean most of the institutes, I mean I can say 90% institute, 95% institute जो होते हैं हेल्प करते हैं। देखिए दोनों चीजें हैं यहाँ पे। लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी है, वो नहीं चाहता कि हमारे यहाँ से बच्चा कोई कोर्स करके वो फिर से जाके वो पहले जो काम कर रहा था वो वही काम करे। आई मीन अगर वो बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है तो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं वो एंगेज हो जाए। ये आई मीन कंट्री की भी डिमांड है और वो इंस्टीट्यूट भी चाहता है, और बच्चा भी कुछ ना कुछ ये सोच के आता है कि मैं अगर ये कोर्स करने जा रहा हूँ तो मेरे को ये, तो इस तरह की हेल्प जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं वो भी करते हैं। और उनसे जो लिंक्ड जो एसएससी है, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काउंसिल है, यहाँ पे हमारा एक पोर्टल है जो जॉब के लिए ही सिर्फ काम करता है। उसमें जो भी इंडस्ट्री की जॉब्स होती है उस पोर्टल पे आती हैं, बच्चे जाके वो जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद वहां से उनके पास कॉल्स आती हैं, कॉल्स के बाद उनके इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज के बाद उनके सिलेक्शन होते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा बना हुआ है। जैसे मैंने आपको Okay. बताया ना कि इसका एक प्रोसेस है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सपोज हमको एक बैच क्रिएट करना है, तो वो चाहे पेड ट्रेनिंग हो या फिर फ्री ट्रेनिंग हो, वो बैच आईडी क्रिएट होती है, एक एक बच्चे की आईडी जनरेट होती है आधार कार्ड के साथ। आधार कार्ड के साथ जब उनकी आईडी जनरेट होती है तो फिर इनका एग्जाम के लिए जो हम लोग दोबारा जब एसएससी को भेजते हैं कि ये 25 बच्चे हैं, इनका एग्जाम होना है, इनकी आईडी ये है, तो एक असेसमेंट एजेंसी होती है जो इनका एग्जाम लेती है। एग्जाम के जब और रिजल्ट के बीच का जो टाइम होता है, करीब 10 से 15 दिन का टाइम होता है। इस 15 दिन के बीच में बच्चों को हम लोग एंगेज रखते हैं प्लेसमेंट के लिए, और उनको रेडी करते हैं कि भाई आपके पास इस तरह की इंडस्ट्री आ रही है, आपको इंटरव्यू में इस तरह के जवाब देने हैं। तो ये जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं कंट्री में, ये सारे लोग इसमें हेल्प करते हैं। I would also like to add one thing. मैम जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वही हमारे आर्म है जो ट्रेनिंग प्रदान करते हैं बच्चों को, फील्ड में मोबिलाइज करते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब हम इवेलुएट करते हैं ट्रेनिंग पार्टनर एप्लीकेशन के लिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम द स्किल, उनके पास जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का और जो टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, हम ये भी एक इवेलुएट करते हैं कि वो ट्रेनिंग पार्टनर्स का इंडस्ट्री कनेक्ट कैसा है, वो इंडस्ट्री से उनसे कनेक्शन है जहां पर वो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें बहुत बड़ा प्रावधान है कि 30% पैसे एक ट्रेनिंग पार्टनर को तभी रिलीज गवर्नमेंट करती है तब बच्चे की नौकरी कहीं वो उसकी नौकरी लगवा दी गई। ये भी एक फैक्टर है कि जो प्रूव करता है कि जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर है वो अपार्ट फ्रॉम द कमिटमेंट, जैसे हमारे संतोष जी हैं, ये इंडस्ट्री में रहे हैं, और ये बेसिकली जो ट्रेनिंग करते हैं इंडस्ट्री डिमांड के ऊपर करते हैं। पहले इनको पता होता है कि कहाँ कितना डिमांड है, उसी बेसिस पे ये लोग अपने बैचेस क्रिएट करते हैं और उनको ट्रेनिंग करते हैं ताकि अश्योर्ड रहे कि उन बच्चों की नौकरी कहीं लग जाए। तो जैसे वांटेड टू ऐड, ये भी एक पूरा बिल्ट इन है मैकेनिज्म में, क्योंकि प्रायोरिटी सरकार चाहती है कि जो बच्चे हम लोग स्किल कर रहे हैं उनको नौकरी लगे, और पूरी मदद करते हैं। उसके अलावा जैसे बताया आपको संतोष जी ने, हमारी एक डेडिकेटेड पोर्टल है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जॉब रोल्स के लिए, जिसमें जितने भी इंडस्ट्री है वो सब उस पर विजिट करती है, और वहाँ जो हमारे बच्चे स्किल होते हैं उनका डिटेल्स हम वहाँ डालते हैं, और वहां से वो बच्चे, तो ट्रेनिंग के बाद नौकरी लगने का चांस एक बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को, बच्चे ऐसे होते हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते, वो अपने काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी हम उनकी सहायता करते हैं। वरना हम पूरी कोशिश करते हैं
और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर संतोष जी जैसे पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को सही और अच्छी नौकरी दिला सकें। Okay. Thank you, sir. I think this was very helpful for the kids. Just one more thing, sir. सर आपने बताया था कि आपकी एक असेसमेंट एजेंसी है जो बच्चे आपके साथ स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं कर रहे हैं उनको भी आप असेस करके यू कैन गिव सर्टिफिकेट सो दैट व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब दे कैन जस्ट गिव सर्टिफिकेट। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर विस्तार से बता दीजिए। गवर्नमेंट के असली जो प्रोग्राम है पूरा स्किल डेवलपमेंट का, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसमें प्रावधान ये है कि वो कोई भी स्किल को प्रमाणित करते हैं और कोई भी स्किल आपको ये फॉर्मली या इनफॉर्मली आपको ली हो, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी स्किल जो लेने की जो एक प्रोसेस है वो एक गुरुचिला प्रथा है। जैसे कोई मैकेनिक होते हैं, उनके नीचे 4-5 बच्चे काम करना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे वहां से सीखते हैं और बाद में जाकर सक्षम बनते हैं और बाद में मैकेनिक बन जाते हैं। ये बार्बर शॉप है जो इनफॉर्मल सेक्टर है बहुत बड़ा, उसमें नॉर्मली एक उस्ताद होते हैं और वो अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस पहले वो असिस्ट करते हैं, फिर वो स्किलिंग लेकर अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पूरा स्किल है, एक्सपर्ट है, लेकिन कोई सरकारी प्रमाणिकता उनके पास नहीं है। तो नेशनल स्किल फ्रेमवर्क में एक प्रावधान यह है, या तो हम बच्चे रॉ बच्चा है उसको लेंगे, उसको हम स्किलिंग पूरा प्रोसेस कराएंगे, उसके बाद उसका हम इम्तिहान से हम असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट लेंगे और जो बच्चे पास हो जाएंगे उसको हम सर्टिफाई करेंगे। वरना जो बच्चे ऑलरेडी स्किल्ड हैं, कोई मैकेनिक है जो काम कर रहे हैं, उनको हम सिर्फ उनका टेस्ट लेंगे और जो उस पर खरे उतरेंगे उनको हम अप्रमाणित कर देंगे इक्वलेंस लेवल, सेम लेवल पे, लेवल 4, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के थ्रू हो या फिर वो जो है उन्होंने कहीं और से सीखा हो। आरपीएल कहते हैं इसको, मैडम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि जो प्रायर लर्निंग ऑलरेडी है उसको जरूरी नहीं है कि हम ट्रेनिंग दें, लेकिन उसको हम सरकारी प्रमाणिकता दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। ऑल्सो सर जैसे अब कोविड में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कहीं पे हमने शुरू किया है कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, तब तो सर लखनऊ में बैठा हुआ बच्चा दिल्ली में भी कोर्स कर सकता है, तो ऐसा कुछ है हमारी कोशिश, कुछ हम इसमें कर रहे हैं आगे? हमारा एक अभी पूरा जो प्रोसेस हम लोग, क्योंकि कोविड के टाइम में है, एक फॉर्चुनेट बात ये भी है क्योंकि अभी हमारे पास ऑनलाइन मैकेनिज्म्स हैं, ताकि हम कहीं से भी कहीं पे, मतलब आप लखनऊ दिल्ली छोड़िए, अगर आप अमेरिका में बैठे हैं और इंडिया से आप कोर्स करना चाहें तो LMS जो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके थ्रू हम लोग स्किलिंग करा सकते हैं। और आजकल तो बहुत ही एडवांस्ड वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन रहे हैं जिनके पास वर्चुअल लैब्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन टेक्निक्स, इसके थ्रू आपको नियर रियल टाइम एक्सपीरियंस हम बच्चे को दे सकते हैं। और ये पूरा हम डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी हम इस स्थिति में हैं कि हम लोग बच्चे को दुनिया में कहीं भी हो ऑनलाइन के जरिए उसको हम कोई भी स्किलिंग दे सकते हैं और वो नियर रियल टाइम एक्सपीरियंस जैसी हो। सर कब तक शुरू होने का चांसेस है? मैडम ये शुरू हो गई हमारी, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो अलाउ नहीं करती हैं अभी ऑनलाइन स्किलिंग देना, तो हमारे पास पूरा मैकेनिज्म रेडी है। तो हम लोग एक उसका पेड मैकेनिज्म निकाल रहे हैं मैडम, क्योंकि जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो एक मतलब हालांकि उनकी सोशल एंटरप्राइज, but they have a lot of expenses to bear, they run infrastructure, they have trainers and they have their own, so we are actually trying to put a cost to it, but it will be a minimal cost, maybe like 500 rupees a month type of cost, कि बच्चा उसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट अभी अपने स्कीम में अलाउ नहीं कर रही है ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन ट्रेनिंग, लेकिन हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। और अभी हम लोग एक हमारा बैच, एक हमारा क्वालिफिकेशन पैक है IT कोऑर्डिनेटर, IT स्कूल कोऑर्डिनेटर, जो स्कूल में IT कोऑर्डिनेटर होता है उसका बैच है। तो हमें 800 बच्चों का मिला है असम स्किल डेवलपमेंट मिशन के थ्रू, पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये बैच हमारा एक हफ्ते पहले शुरू हो गया। We have the mechanism.